ہفتے ہم نے سیکھا تھا دعا اور روزے کی طاقت کے بارے میں کہ دعا اور روزے کی جو طاقت ہے وہ کیا ہے ہماری روحانی زندگی میں، ہماری روحانی کردار میں، ہماری مسیحی زندگی میں جو روزہ ہے اور دعا ہے اس کی طاقت کیا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے خدا میں یسوع میں تعمیر ہونا، دعا اور روزے کے ذریعے یسوع میں تعمیر ہونا۔ کلسیوں 2 باب اس کی 6 تا 7 آیت تک میں تلاوت پاک میں سے کے سامنے میں پڑھوں گی، کلام پاک میں سے تلاوت کروں گی۔ کرسیوں 2 باب اس کی 6 تا 7 آیات۔ بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ آمین۔ آئے ہم چند سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ اے باپ، تیرا نام جلال پائے، میں نہیں تو بول اپنے بچوں کے ساتھ یسوع کے نام سے، آمین۔ پچھلے ہفتے روزے اور طاقت کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ اگر یہ عمل ہماری زندگی میں ہے ویسے جس طرح سے مسیح نے ہمیں سکھایا ہے تو اس کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں۔ ہم نے اس کی طاقت کے بارے میں سیکھا۔ آج ہم سیکھیں گے مسیح میں تعمیر ہونا۔ یہاں پر ہم نے باقاعدہ لفظ پڑھا ہے تعمیر ہوتے جاؤ۔ ایک بلڈنگ ہوتی ہے زیر تعمیر۔ زیر تعمیر کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی تعمیر کا کام ابھی ختم نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ اس کا رہتا ہے، ابھی اس میں جا کر آپ بسیرا نہیں کر سکتے ہو، اس میں آپ رہ نہیں سکتے ہو کیونکہ وہ زیر تعمیر ہے۔ تعمیر شدہ، تعمیر یافتہ یعنی کہ وہ تعمیر ہو چکی ہے، آپ اس میں جا کر بچ سکتے ہو، اس کا تعمیر کا کام ہر لحاظ سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو ایک بلڈنگ کی بات ہے۔ اب ایک انسان کی تعمیر کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جب ہم پیدائشی طور پر بچے ہوتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی عمر کے ساتھ ہم تعمیر ہوتے ہیں۔ 1 سال کے ہوتے ہیں، 2 سال کے، 3 سال کے، پہلی کلاس میں، دوسری کلاس میں، تیسری کلاس میں، سوری یعنی کہ ہمارے لیول بڑھتے ہیں۔ انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن پلیز تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا۔ ڈیڈی اسٹیفن نے ریکارڈنگ کا بولا ہے تو سسٹر مریم ریکارڈنگ کر رہی ہیں، تھوڑا سا اونچی بس بولیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ کلسیوں 2 باب اس کے 6 تا 7 آیات میں ہم نے پڑھا، بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مسیح میں تعمیر ہونا کتنا ضروری ہے۔ جب ہم روزے کی طاقت کو، دعا کی طاقت کو پچھلے ہفتے سمجھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، تو آج ہم نے سیکھنا ہے کہ مسیح میں تعمیر ہونا کیوں ضروری ہے۔ مسیح میں تعمیر ہونا اسی لیے ضروری ہے کہ ہم روحانی طور پر اس اجر کے لائق نہیں بن سکتے جو اجر ہمیں مسیح نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں دوں گا، اس اجر کے ہم حقدار نہیں بن سکتے۔ جس بلڈنگ کو آپ زیر تعمیر دیکھتے ہو آپ اس میں رہ نہیں سکتے، آپ اس میں بس نہیں سکتے کیونکہ وہ زیر تعمیر ہے، اور جو تعمیر یافتہ ہے، تعمیر شدہ ہے، آپ اس میں جا کے رہ سکتے ہو، آپ اس میں جا کے بسیرا کر سکتے ہو کیونکہ اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، وہ مکمل ہو چکی ہے۔
इसी तरह रूहानी जिंदगी एक बिल्डिंग की मानद यहाँ पर बताई गई है कि हमने रूहानी जिंदगी को क्या करना है, दुआ और रोजे से और अपने अमाल से जो है वो तमीर करना है। बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावंद को कबूल किया, बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावंद को कबूल किया, इरादा कर लिया, कबूल कर लिया मसीह को, पानी का बपतिस्मा भी ले लिया, यीशु के साथ जीने का वादा कर लिया, उसी तरह आगे क्या है, उसी तरह उसमें चलते रहो, चलते रहो। जो सफर आप जारी रखते हो उसकी मंजिल है। जो बिल्डिंग तमीर का काम जिसका हो रहा है वो एक ना एक दिन तमीर हो जाएगी, लेकिन एक बिल्डिंग जिसका काम शुरू हो गया है, स्टॉप कर दिया है, 10 साल के बाद भी आप देखोगे, 20 साल के बाद भी आप देखोगे, वो ज़ेरे तामीर ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसका तमीर का काम रुक गया है। इसी तरह से जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो फिर स्टेप है, रूहानी जिंदगी की तमीर के फिर स्टेप है। फिर हमने रूहानी जिंदगी में तमीर होने के लिए जो जो स्टेप मसीह के साथ चलने के लिए हमें चाहिए उस पर हमने अमल करना है। उसी तरह उसमें किसमें? मसीह में। अगर हमने मसीह में तमीर होना है तो फिर हमने मसीह में चलना है, यानी कि उसके हुक्मों के मुताबिक चलना है, उसके नक्शा कदम पे चलना है, उसके पैरोकार बनना है। पैरोकार का मतलब है कि पीछे पीछे चलना, उसके कदमों के ऊपर कदम रखना है और आगे पीछे नहीं होना, दाएं बाएं नहीं होना। सोच के लिहाज से, चलने के लिहाज से, बोलने के लिहाज से, कुछ भी किसी भी लिहाज से आगे पीछे नहीं होना। उसी तरह मसीह में चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। एक बीज जब आप जमीन पे बोते हो क्या करते हो? उसके बाद बोकर छोड़ देते हो? नहीं, पानी डालते हो, डेली पानी डालते हो, थोड़ा सा निकलता है बाहर उसका, उसके जो भी टहनी निकलती है, तना निकलता है, खुश होते हो, फिर उसमें पानी डालते हो, ध्यान रखते हो कि कोई इस बीज को निकाल के ना ले जाए, कोई चरिंद परिंद इसको खराब ना करे, एक बाड़ लगाते हो, उसकी हिफाजत करते हो, गोडी का काम करते हो ताकि ये पौधा जो है वो बढ़े। जड़ जब तक वो पकड़ेगा नहीं तब तक वो एक तनावर दरख्त नहीं बन सकता। इसी तरह से जब मसीही जिंदगी हम स्टार्ट लेते हैं, जब हम शुरू करते हैं तो बड़े ही जोश से हम शुरू करते हैं। एक वलवला होता है, एक जोश होता है, क्योंकि हमने मसीह को कबूल कर लिया। हम 2 घंटे दुआ करेंगे, हम 3 घंटे दुआ करेंगे, हम दो दिन का रोजा रखेंगे, हम हर रोज रोजा रखेंगे। ये क्या है? मसीह को कबूल करते वक्त हमने एक जोश दिखाया था। लेकिन यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है? उसी तरह, किस तरह? जिस तरह तूने मसीह को कबूल किया था उसी तरह अब चलते भी रहो। अब क्या करना है? उन्हीं जोश वाली बातों में, वादों में जो खुदा के साथ किए हैं, यीशु के साथ किए हैं, अब उनमें कायम रह के चलते रहो, ताकि क्या हो? जड़ पकड़ो। ताकि क्या हो? जड़ पकड़ो और तमीर होते जाओ। हर रोज मेहनत करने की जरूरत है, हर रोज पानी डालने की जरूरत है, हर रोज एक रद्दा रखने की जरूरत है, हर रोज देखने की जरूरत है कि तमीर का काम कितना रह गया है और कितना अभी बाकी है। अगर बाकी है थोड़ा काम तो उसके मुताबिक फिर हमने मेहनत को भी बढ़ाना है, काम को बढ़ाना है, ताकि हम तमीर होते जाएं।
जिस तरह तुमने तालीम पाई, जिस तरह तुमने तालीम पाई। पास्टरों ने 6 महीने लगाए होंगे, साल लगाया होगा, 2 साल लगाए होंगे बपतिस्मे की तालीम देने के लिए, मेहनत की होगी, तालीम दी होगी। जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। थोड़ी बहुत नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, खूब शुक्र गुजारी किया करो। किसी भी हाल में है, सफर में, कोई भी रूहानी सफर में कुछ भी है, खूब शुक्रगुजारी करते हुए इस सफर में बढ़ो, क्योंकि मसीही जिंदगी जो है वो मुश्किलों से भरी हुई है, तकलीफों से भरी हुई है, तंग रास्ता है, और ये हमने खुद चुना है। ठीक है, 2 रास्ते हमें खुदा ने दिखाए, ये कुशादा है, ये सुकड़ा है। सुकड़ा रास्ता जो है यीशु की तरफ जाता है, कुशादा जो है वो मौत की तरफ जाता है। तो हमने खुद चुना है। अब इस सफर में क्या होगा, जो कुछ भी आएगा, तूने क्या करना है, खूब शुक्रगुजारी करनी, और ईमान में क्या रहना है, मजबूत रहना है। मसीह में तमीर होने का काम शुरू हो जाता है जब हम क्या करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं और उसके साथ कायम रहने के लिए वादा कर लेते हैं। रोमियो 8 बाब उसकी 26वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। कौन? पाक रूह। किन की? मुकद्दसों की। मुकद्दसीन कौन है? जो मसीह में अमीर होते जाते हैं, ईमान में मजबूत होते जाते हैं, खूब शुक्रगुजारी करते हैं, खूब दुआ करते हैं, खूब रोजे रखते हैं। उसी तरह ही चलो जिस तरह से चलने का वादा यीशु को कबूल करते हुए किया था। ये वही इंसान कर सकता है इस सफर को पूरा जो एंड टाइम तक वफादार रहता है, जान देने तक जो वफादार रहता है। पाक रूह उनके लिए क्या करता है, फिर शिफायत करता है। आगे हमने पढ़ा कि मुकद्दसीन की शिफायत करता है। अब हर कोई मुकद्दस नहीं हो सकता। मुकद्दसीन ने बड़ी मेहनत करके इस बाइबल को हम तक पहुंचाया। मुकद्दसीन की जो मौत थी, जो उनके साथ पेश आया, वो हम पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। खतरनाक तरीके से उन्होंने जिंदगी गुजारी। फिर उनके साथ, उनके नामों के साथ लगा मुकद्दस लूका, मुकद्दस मरकस, मुकद्दस पतरस, मुकद्दस पालूस रसूल। मुकद्दसीन की शिफायत करता है। मुकद्दस बनने के लिए, मुकद्दसों की तरह बनने के लिए, और ये ख्वाहिश हमारी जिंदगी में हो कि पाक रूह हमारी शिफायत करे, तो फिर हमें मुकद्दसीन जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी मेरे चीजों, कि पाक रूह हमारी शिफायत करे। इससे पहले क्या करना है, उसी तरह चलना है जिस तरह हमने चलने का वादा किया था मसीह के साथ। तमीर होना है उसमें, तमीर का काम नहीं रुकना चाहिए, ईमान की मजबूती में कमी नहीं आनी चाहिए, शुक्रगुजारी में कमी नहीं आनी चाहिए, ये सफर रुकना नहीं चाहिए, ये काम तमीर का काम रुकना नहीं चाहिए। तभी पाक रूह क्या करेगा, हमारी शिफायत करेगा। क्या जानकर? मुकद्दसीन जानकर। आड़े में चिरे गए, उबलते हुए ऑयल में उनको डाला गया, फांसियां दी गई, संसार किया गया, भूखा रखा गया, कैद में डाला गया, कोड़े मारे गए।
फिर जाकर उन्होंने मुकद्दसीन का जो लक़ब है वो हासिल किया। कहता है कि कमजोरी में उसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें मुकद्दसीन के लिए पाक रूह आहें भर रहा है। आहें आहें भर भर कर दुआ करेगा। किन के लिए? मुकद्दसीन के लिए शफायत करेगा और ऐसी दुआ करेगा जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शफायत करता है। हमारा मसीह, हमारा खुदा, हमारा रब जब हमारी जिंदगी में तमीर का काम चलता हुआ देखेगा कि हमने जड़ पकड़ लिया है, हमने जैसे नींव रखी थी अपनी रूहानी जिंदगी की, ठीक उसी तरह तमीर का काम भी चल रहा है, ये रुका नहीं। जिस तरह कलाम पाक में हमने पढ़ा कि उसी तरह चलते रहो। ये नहीं कहा कि बपतिस्मा ले लिया, अब थक गए हो, 6 महीने रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर काम शुरू कर लेना, रूहानी तौर पर मेहनत शुरू कर लेना, दुआ शुरू कर लेना, फिर 6 महीने के बाद खुदा के अब ना थोड़ी सी और रेस्ट कर लो। चलते रहो। कुलसियों में हमने क्या पढ़ा? चलते रहो। मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम वो जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से 2 जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं, सेंटर में हूं, दरमियानी बन जाता है हमारा मसीह। किन के लिए? सबके लिए। कोई भी दुआ करे? नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जिसने मेरी तालीम पर अमल किया, जिसने मुझे कबूल करने के बाद तमीर का काम रोका नहीं, बढ़ रहा है, दिन ब दिन जड़ पकड़ रहा है, अब तेरा अजर क्या है जब तू दुआ करेगा। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे मुकद्दस बेटे, ऐ मेरे रास्तबाज बेटे और बेटी, जब तू जमीन पर कुछ भी बांधेगा, खोलेगा, मैं आसमान पर बांध दूंगा, खोल दूंगा। क्यों? खुदा के साथ रिलेशन बन गया, खुदा के साथ रिश्ता बन गया। कौन सा रिश्ता बन गया? जिस रिश्ते के बारे में हमने बपतिस्मा लेने के बाद वादा किया था कुलसियों में, बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। इस चीज पर क्या किया हमने? एंड टाइम तक अमल किया। इसलिए मत्ती की ये जो अंजील मत्ती की अंजील की जो आयत मैंने तिलावत की है, फिर हमारी जिंदगी में पूरी होंगी। और तादाद ज्यादा नहीं वहां पर लिखी, तादाद ज्यादा नहीं लिखी। फिर क्या होगा? हमारे लफ्जों में पावर होगी, हमारी दुआ में पावर होगी, क्योंकि क्या हो गया कि हम मसीह में तमीर हो गए। कैसे? हमने अपने रूहानी सफर को रोका नहीं, हमने दुआ रोजे को रोका नहीं, हमने खुदावंद के साथ चलना छोड़ा नहीं, उस रिलेशन को हमने कायम रखा, उस वादे को हम नहीं भूले जो हमने मसीह के साथ चलते वक्त, बपतिस्मा लेते वक्त, उसमें उस पर ईमान रखते वक्त हमने किया था। उसके बाद क्या होगा
कि जो कुछ भी मांगेंगे मिलेगा, जो जमीन पर खोलेंगे खुलेगा, आसमान पर खुलेगा, जो जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बांध जाएगा। हम खुदावंद के क्या बन जाएंगे? स्पेशल बच्चे बन जाएंगे। हम मसीह के चुने हुए बच्चे बन जाएंगे, स्पेशल लोगों में शामिल हो जाएंगे, उसके साथ रिलेशन में मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि हम तमीर हो गए। हमने तमीर का काम नहीं छोड़ा, हमने तमीर होने के काम को 1 महीना भी, 1 साल भी हमने रोका नहीं। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि मैं पैदाइश में क्या हूँ? सबसे छोटा हूँ। यानी कि सबसे बाद में जब आए पौलुस रसूल, रसूलों की लिस्ट में क्या हुआ कि उन्होंने दौड़ नहीं छोड़ी, उन्होंने रूहानी सफर नहीं फिर छोड़ा। फिर वही दावा कर सकते हैं पौलुस रसूल कि कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? भूख, नंगापन, तकलीफ, फाका, क्या? पौलुस रसूल कहता है कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? क्यों? क्योंकि जब पौलुस रसूल मसीह की तरफ मुड़े, मसीह को पहचाना, मसीह के साथ चलना शुरू किया, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर वो हर रोज बढ़ते गए और हर रोज तमीर होते गए, और फिर उन्होंने दावा किया कि मेरी मानद बनो इस तरह मैं मसीह की मानद हूं। अपने सफर को, रूहानी सफर को नहीं उन्होंने रोका, स्टॉप नहीं किया, तमीर हुए, वो दुख भी उठाए। जब हम दुख उठाते हैं, मसीह के साथ दुख उठाते हैं, तो फिर हम उसके मिरास के हकदार हैं। इसका भी सबूत हमें खुदावंद के कलाम में मिलता है कि हम फिर ही उसकी मिरास के हकदार है। रोमियो 8 बाब उसकी 15-17 तक मैं तिलावत करूंगी। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्त कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। मिरास का हकदार कौन होता है बेटा? वारिस। मसीह ने जो उसका हक है, जो उसकी मिरास है, जो उसका सब कुछ है, उसके हकदार हैं हम। इसका मतलब हम उसकी औलाद है, वो हमारा बाप है, वो हमारा अब्बा है। हर किसी को बाप जायदाद का हक नहीं दे सकता, नहीं देता, ना ही होता है, ना ही लॉ है। अपने बेटे को देगा, अपने वारिस को देगा। यहाँ पर मसीह ने क्या किया? कहा कि मेरी मिरास के हकदार हो तुम, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। खुदा के वारिस, मसीह के हम मिरास। हम मिरास क्या होता है? जो मेरा है वही आपका है। हम क्लास, हम स्कूल, ऐसे हम कहते हैं ना, ये मेरा हम क्लास है, हम दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं। हम मिरास का मतलब है कि जो मसीह का है वो हमारा है, हम उसके हम मिरास हैं। जो बाप ने मसीह को दिया, मसीह हमें उसका हकदार बनाता है। हम उसके साथ दुख उठाएं, सिर्फ ये है कि हमने उसके साथ दुख उठाने हैं। जब तमीर का काम होता है तो फिर आपको कोई भी मिस्त्री या तमीर का काम करने वाला ये नहीं प्यार से ईंट रखते हुए नहीं नजर आएगा। वो कहीं ना कहीं से पत्थर को तराशता है, मारता है, छेनी के साथ, किसी भी अपने औजार के साथ तोड़ता है, ताकि जो कोना मैंने बनाना है दीवार का खूबसूरत लगे। जब तमीर का काम है तो तकलीफें हैं,
तमीर का काम खूबसूरत, अगर आप देखना चाहते हो, खूबसूरत बिल्डिंग देखना चाहते हो तो काट छांट होगी, तराशे जाओगे, फिर ही खूबसूरत काम, खूबसूरत तमीर का काम जो है ना वो खत्म होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मिराज के अगर हकदार बनना है, मसीह की मिराज के अगर हकदार बनना है तो दुख उठाने हैं। दुख क्यों उठाने हैं? क्योंकि जैसे हमने कुलसे में पढ़ा कि तमीर होते जाओ, और तमीर का काम क्या है? दर्द का, दुख का, तकलीफों का। मालिक हमारा आसमानी बाप जो है वो कहीं ना कहीं से हमें कांटेगा भी, छांटेगा भी, मारेगा भी, आजमाइशें भी आएंगी, दुख भी आएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह एक मिस्त्री तमीर करता हुआ पत्थर को तोड़ता है, छांटता है, मारता है, एक ईंट को दूसरी ईंट के ऊपर रखने के लिए ठोकता है ताकि ये बैठ जाए, ताकि ये हिले ना, ये सीमेंट को पकड़ ले। ये है तमीर का काम। दुख उठाना, अगर हम मसीह के साथ दुख उठाएंगे तो फिर ही हम उसकी मिराज के हकदार हो के उसमें जलाल पाएंगे। तो मेरे अजीजों, अगर हमारा रूहानी तो सफ़र शुरू हो गया, मसीह के साथ वादे शुरू हो गए हैं, मसीह में हम तमीर होना शुरू हो गए हैं, तो लाजम है कि हम अपनी तमीर के काम पर गौर करें। रुका हुआ है, हो रहा है, या फिर हम इसको शुरू करके भूल चुके हैं कि अभी जो है हमने उस पर गौर नहीं किया। तो याद रखें कि हो सकता है कि बिल्डिंग गिर जाए, ये भी हो सकता है कि हम उसमें राज के हकदार ना हो, ये भी हो सकता है कि मसीह हमें कहे कि मैं तुम जानता ही नहीं, ये भी हो सकता है कि वो हमें नीम गरम जानकर हमें अपने मुंह से निकाल फेंके। ये हो सकता है। हमें देखने की ज़रूरत है कि रूहानी तमीर का काम हो रहा है या रुक गया है, या इसके बारे में गौर ही नहीं हो रहा। आज के कलाम के वसीला से सबको बरकत मिले। आमीन।